Good afternoon, everyone. A very warm welcome to today's book reading session. So, we are going to start our session with a short meditation. Please relax. Relax your mind, relax your body. Straighten your spinal cord. Sit comfortably. If possible, you can sit cross-legged. If not, you can just relax wherever you are. Please close your eyes for a few moments and focus on your breathing. Exhale fully. With every exhalation, relax your body further. A deep breath in, and with your exhale, relax your mind. Just look if there is any negativity in the form of envy, jealousy, anger, hatred, or even a little bit irritation. Exhale and leave this out. Now, take a deep breath in. This is fresh air. You can feel yourself surrounded by God's love, protection, strength, power, peace, and blessings. Now affirm, I am a pure soul. I am strong. Grateful for today. I am grateful for this moment. I am grateful for my life. Myself and everyone. Life is obstacle free, and I effortlessly succeed in my life. Everything is perfect. All is well in mind. Thank you. Shanti. That is session. Let me share the screen. So today we will start from obstacles and impediments on the directions. I hope my screen is visible to everyone. I am sure you have heard me say that fellow has a rat. He is a racket. He is getting many years on this. He is a faker. I knew him when he had met.
is a proof, a theme, and voice. Is usually involved or suffering from some financial or physical illness. My college friends went up the ladder of success and excelled him. Now he is bitter and envious of their progress. In many instances, this is the cause of his downfall. Thinking negatively of these classmates and since the will in prosperity, he is praying for to vanish and live. He is condemning the thing he is praying for. तो फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा कि कोई अ, कोई है जो अपने फेलो क्लासमेट के लिए या फिर किसी को भी जानते हैं, हम लोग इस टाइप के लोगों को देखते हैं, सुनते हैं, जो दूसरे के वेल्थ से या दूसरों के पास जो पोजीशन है उसको लेकर के एनवियस हो जाते हैं और फिर वो लोग उसको जस्टिफाई करने लग जाते हैं कि मैं तो इसे पहले से जानता था, ये ऐसा था कि मैंने जरूर इसने कुछ ना कुछ किया होगा ये चीजें पाने के लिए। तो ऑथर इसमें हमें ये कह रहे हैं कि जब हम इस तरह से निगेटिवली सोचते हैं दूसरों के पास जो है उसको लेकर हम अगर एनवियस हो जाते हैं, हम जब बिटर होते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे खुद की डाउनफॉल होती है उसके रिस्पॉन्सिबल हम खुद होते हैं। जो वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी या कोई भी चीज जिसके लिए हम प्रे कर रहे हैं और अगर वो चीज किसी और के पास हो तो हमें उसके बारे में ऐसे निगेटिवली नहीं सोचना चाहिए। वरना क्या होता है कि हम इसके लिए प्रे तो कर रहे हैं कि हमें वेल्थ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी चाहिए, पर अगर हम इस तरह से किसी और के बारे में नेगेटिवली बात करेंगे तो उससे जो वेल्थ या प्रॉस्पेरिटी हमारे पास आने वाली थी वो भी चली जाएगी। He is praying two ways. On the one hand, he is saying, wealth is flowing to me now, and in the next breath, silent or audibly, he is saying, I resent that fellow to rejoice in the wealth of the other person. तो ऑथर ने इसमें समझाया कि उस आदमी ने दो तरीके से प्रेयर, एक तो क्या कह रहा है वो कि वेल्थ इज फ्लोइंग टू मी नाउ, ये जो एफर्मेशन हम लोग लेते हैं कि जो हम चाहते हैं वैसे ही हम एफर्मेशन दें, हम उसी चीज को अट्रैक्ट फिर करते हैं। तो उसने ये एफर्मेशन प्रे करी और नेक्स्ट मिनट में उसने कहा कि आई रिजेंट दैट फेलोज वेल्थ। तो ये दोनों तरह से हम नहीं कह सकते हैं ना, अगर हमें कोई चीज चाहिए और अगर दूसरे के पास में वो चीज है तो फिर उसकी खुशी में भी हमें खुश होना चाहिए। यहाँ पे वेल्थ का एग्जाम्पल ये है, हम अपनी लाइफ की सिचुएशन के हिसाब से और भी चीजों को रख करके देख सकते हैं। जैसे कि अगर एग्जाम है और अगर किसी के ज्यादा मार्क्स आ गए तो हमें उसके ज्यादा मार्क्स आए हैं उसको भी देख करके उसमें रिजॉइस करना चाहिए। तो इस तरह से क्या होगा, हम भी पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिविटी स्प्रेड करेंगे और वो चीजें और जल्दी हमारे पास में फिर आएंगी। Protect your investments. If you are seeking wisdom regarding investments or if you are worried about your stocks or bonds, quietly claim. Infinite intelligence governs and watches over all my financial transactions, and whatsoever I do shall prosper. Do this frequently, and you will find that your investments will be wise. Moreover, you will be protected from loss, as you will be prompted to sell your securities or holdings before any loss accrues to you. अपने इन्वेस्टमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए ऑथर ने यहाँ पे एफर्मेशन दिए। अगर हम इस एफर्मेशन को बार बार फ्रिक्वेंटली यूज करेंगे तो फिर हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत वाइज होगी, हम सोच समझ कर इन्वेस्ट करेंगे, लॉस से प्रोटेक्टेड होंगे और लॉस हमारे पास इस वक्त फिर ज्यादा नहीं आएगा। तो एफर्मेशन के एक बार ध्यान से देखते हैं। इनफाइनाइट इंटेलिजेंस गवर्न्स एंड वॉचेस ओवर ऑल माय फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड व्हाटसोएवर आई डू शैल प्रॉस्पर।
ये जो बुक हमने स्टार्ट करी ना, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, तो इसमें हमने स्टार्टिंग वाले चैप्टर्स में ही देखा था कि जो हमारी सबकॉन्शियस माइंड होती है उसमें इनफाइनाइट इंटेलिजेंस होती है, और उसमें इतना ज्ञान होता है, तो हमारी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जानता है। तो हर चीज का सॉल्यूशन हमारे खुद के अंदर होता है। तो इस एफर्मेशन में भी उन्होंने ये बताया कि इनफाइनाइट इंटेलिजेंस जो है वही गवर्न कर रही है मेरे सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को, वो वॉच कर रही है, और मैं जो भी करती हूँ या करता हूँ उसमें मुझे प्रॉस्पेरिटी मिलती है। तो इस एफर्मेशन को हम बार बार यूज कर सकते हैं। यू कैनॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग। In large stores, the management employs store detectives to prevent people from stealing. They catch and have people every day trying to get something for them. All such people are living in the mental atmosphere of lack and limitation and are stealing from themselves peace, harmony, faith, honesty, integrity, goodwill, and confidence. Furthermore, they are attracting to themselves all manner of laws, such as laws of character, prestige, social status, and peace of mind. These people lack faith in the source of supply and the understanding of how their minds work. If they would mentally call on the powers of their subconscious mind and claim that they are guided to their true expression, they would find work and constant supply. Then, by honesty, integrity, and perseverance, they would become a credit to themselves and to society at large. जैसे इस हेडिंग में लिखा है ना, यू कैनॉट गेट समथिंग फॉर नथिंग, मतलब कुछ भी नहीं देकर हम कुछ पा नहीं सकते। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि जो लोग चोरी करते हैं, जो लोग स्टीलिंग करते हैं, स्टीलिंग में क्या होता है, वो कुछ पे नहीं करते हैं, तो नथिंग के लिए उन्हें समथिंग चाहिए, उन्हें कुछ चाहिए चुराने के लिए। तो इन्होंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल दिया कि जो लार्ज स्टोर्स होते हैं वहां पे मैनेजमेंट स्टोर डिटेक्टिव्स को एम्प्लॉय करते हैं ताकि लोगों को स्टील करने से रोका जा सके। और वो लोग कई लोगों को, वैसे लोगों को पकड़ते भी है जो स्टीलिंग कर रहे होते हैं, तो उन्हें कुछ नहीं पे करके भी कुछ चाहिए होता है, इसलिए वो लोग स्टीलिंग करते हैं। पर यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि जब कोई स्टील करता है तो अपने उसका मेंटल एटमोसफेयर, उसकी मेंटालिटी में क्या रहता है, लैक और लिमिटेशन। उस उसके जीवन में कुछ ना कुछ कमी है, उस कमी को वो पूरा करने के लिए स्टीलिंग कर रहा है। लेकिन जब वो कुछ स्टील करता है, कोई मटेरियल चीज स्टील करता है, तो वो खुद से ही अपनी जो पीस होती है, अपनी शांति, हार्मनी, फेथ, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, गुडविल, कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ भी उसका स्टील हो जाता है। और वो लोग, उनका लॉस ऑफ कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर ऐसे लोगों का अच्छा नहीं रहता है जो लोग स्टील करते हैं। उनका प्रेस्टीज खराब होता है, सोशल स्टेटस खराब होता है, उनकी पीस ऑफ माइंड चली जाती है। तो ऑथर यहाँ पे भी कह रहे हैं कि जो सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स है उसमें हमें फेथ रखना होता है। अगर हम उसमें फेथ रखेंगे, ऐसा हम बिलीव करेंगे कि हम गाइडेड हैं, गाइडेड बाय आवर ट्रू एक्सप्रेशन, तो हमें काम भी मिलेगा, कांस्टेंट सप्लाई भी मिलेगी। और जब भी हम कुछ काम करते हैं तो उसे हमें ऑनेस्टी के साथ करना होता है, इंटीग्रिटी के साथ, परसिवरेंस के साथ। परसिवरेंस क्या होता है, कंसिस्टेंसी हमें मेंटेन करनी होती है। तो जैसे इस बुक में भी काफी सारे टेक्निक्स हमें मिले हैं, तो उन टेक्निक्स को हमें यूज करना होगा विथ परसिवरेंस। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ऐसा सुना ही है हमने। कुछ भी हम करते हैं तो उसमें हमें कंसिस्टेंटली वो काम करते रहना है, और ऑनेस्टी भी मेंटेन करनी, तब हमें सक्सेस जरूर मिलेगी। योर कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मनी, recognizing the powers of your subconscious mind and the creative power of your thought or mental image is the way to opulence, freedom, and constant supply. Accept the abundant life in your own hands
Your mental acceptance and expectancy of wealth has its own mathematics and mechanics of expression. As you enter into the mood of opulence, all things necessary for the abundant life will come to pass. Let this be your daily affirmation. Write it in your heart. I am one with the infinite riches of my subconscious mind. It is my right to be rich, happy, and successful. Money flows to me freely, copiously, and endlessly. I am forever conscious of my true worth. I give of my talents freely, and I am wonderfully blessed financially. It is wonderful. स्टार्टिंग में ऑथर ने हमें सबकॉन्शियस माइंड की पावर्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए कहा कि हम अपनी खुद के सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स को पहचानें। जो क्रिएटिव पावर होती है हमारे थॉट की, मेंटल इमेज की, थॉट्स के क्रिएटिव पावर कैसे होगी जब हम क्रिएट करते हैं सब ब्यूटीफुल एफर्मेशंस, जब हम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो वो क्रिएटिव पावर ऑफ थॉट होता है। और क्रिएटिव पावर ऑफ मेंटल इमेज क्या होता है? जब हम विजुअलाइज भी करते हैं खुद को, वो चीजों को देखते हैं जो हमें चाहिए होता है, तो वो मेंटल इमेज की क्रिएटिव पावर होती है। तो हमें विजन क्रिएट करना होता है। तो जब हम ये दोनों चीजें कर रहे हैं तो फिर हमें ऑप्युलेंस, फ्रीडम और कांस्टेंट सप्लाई मिलती ही है। तो हमें जो एबंडेंट लाइफ है अपने खुद के माइंड पे, उसको एक्सेप्ट करना है। अपने माइंड में ही एबंडेंस हमें क्रिएट करनी है। क्योंकि जैसा हम बिलीव करेंगे हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको एक्सेप्ट करेगा और फिर वही चीजें अट्रैक्ट होकर हमारी लाइफ में आएगी। तो जब हम मेंटली इस चीज को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सपेक्टेंसी होती है, यहाँ पे वेल्थ का एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स, मैकेनिक्स, सब कुछ हो करके फिर वो चीज हमें रियलिटी में ऑब्जेक्टिवली मिलती है। अब उसके लिए डेली एफर्मेशन ऑथर ने बोला है, राइट इट इन योर हार्ट। अपने मन से हमें ये चीज कहनी है, पूरे दिल से कहनी है। finite riches of my subconscious mind. It is my right to be rich, happy, and successful. Money flows to me freely, copiously, and endlessly. I am forever conscious of my true worth and give up my talents freely, and I am with the Step up this way to riches. Be bold enough to claim that it is your right to be rich and your deeper mind will honor your claim. इस क्लेम करने की जो रिच होना वो हमारी राइट है, ये हमारा अधिकार है। तो जब हम ऐसे कोई चीज पे हमारा राइट होता है, अधिकार होता है, तो हम इसको और ज्यादा अच्छे से एक्सेप्ट कर पाते हैं। इसीलिए ऑथर कह रहे हैं ना पहले वाले अफर्मेशन में भी कि इट इज माई राइट टू बी रिच, हैप्पी एंड सक्सेसफुल। तो वो हमारा अधिकार है। ये जब एक्सेप्ट कर लेगा तो फिर हमें अपनी रियलिटी में भी दिखाई देगा। यू डोंट वॉन्ट जस्ट एनफ टू गो अराउंड, यू वॉन्ट ऑल द मनी यू नीड टू डू all the things you want to do, and when you want to do them, get acquainted with the riches of your subconscious mind. तो ये सब समरी है जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। When money is circulating freely in your life, you are economically healthy. Look at money like the tide, and you will always have plenty of it. The ebb and flow of the tide is constant. When the tide is out, you are absolutely sure that it will return. तो अपने लाइफ में जो मनी है उसको यहाँ पे ऑथर ने कंपेयर किया है टाइड के तरह। हमें पता है ना हाई टाइड लो टाइड आता है, उसको हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हैं। तो टाइड जब लो टाइड का भी टाइम होता है तो हमें पता होता है कि वो जो टाइड है ना वो रिटर्न करेगा, अभी वापस हाई टाइड है। तो मनी को भी हमें इसी तरह से सोचना है। यहाँ पे एक और चीज समझनी है कि हमेशा जरूरी नहीं है कि हमारे पास में बहुत ज्यादा मेहनत हो। कभी कभी होता है कुछ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं, तो उस वक्त भी ऑथर ने इस टाइड का एग्जाम्पल देकर ये समझा रहा है कि हमें विश्वास रखना है कि ये लो टाइड वाला टाइम है, फिर से हाई टाइड रिटर्न करेगी। तो हमें निराश नहीं होगी।
Knowing the laws of your subconscious mind, you will always be supplied regardless of what form money takes. अपने सबकॉन्शियस माइंड के जो लॉज हैं किस तरह से वो ऑपरेट करता है उसे जानना है हमें। और मनी किसी भी फॉर्म में आए लेकिन हमें विश्वास रखना है कि उसकी सप्लाई होगी। One reason many people simply let ends meet and never have enough money is that they condemn money. What you condemn dictates and drives everything. Do not meet a god of money, it is only a symbol. Remember that the real riches are in your mind. You are here to lead a balanced life. This includes acquiring all the money you need. ऑथर हमें इसमें ये समझा रहा है कि जो रियल रिचेस होता है वो हमारे माइंड में ही होता है। और हमें एक बैलेंस्ड लाइफ जीनी है। उसमें जितनी मनी हमें चाहिए जितनी हमारी नीड है वो सब हम अक्वायर करें। वी डोंट नीड मनी और सोल। क्लेम वेल्थ, happiness, peace, true expression, and love, and personally radiate love and goodwill to all. इस लाइन को तो अंडरलाइन कर लीजिए। पर्सनली रेडिएट लव एंड गुडविल टू ऑल। तो मनी को हमें अपना सोल एम, सोल क्या होता है, ओनली वन। तो हमें एक ही एम नहीं रखना है मनी का, हमें ये सारी चीजें क्लेम करनी। अगर हमें बैलेंस्ड लाइफ चाहिए तो इसमें सब कुछ होना चाहिए। वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, ट्रू एक्सप्रेशन, लव, ये सारी चीजें क्लेम करने के लिए पर्सनली भी हमें लव और गुडविल सबको रेडिएट। जैसे आज के सेशन में हमने स्टार्टिंग में देखा ना, जो अगर कोई किसी इंसान के बारे में उस तरह से नेगेटिवली बात करता है तो वो क्या गुडविल होती है? वो गुडविल हो। तो हमें पर्सनली अगर लव और गुडविल सबको रेडिएट करना है तो किसी के बारे में भी हमें नेगेटिव ना खुद बोलना है ना ही सुनना है। तो सामने वाला भी अगर नेगेटिव किसी के बारे में बोले तो हमें उसको रोक देना। उससे हम खुद भी बचेंगे और सामने वाला भी बचेगा और जिसके बारे में बात हो रही है वो भी बच जाएगा। तो हमें लव और गुडविल सबको रेडिएट करना है। Then your subconscious mind will give you compound interest in all these fields of expression. कल अनिका सिस्टर ने इसके ऊपर एक शेयर किया था ना, फोक सबकॉन्शियस माइंड को खुद के रिगार्डिंग, कि जब हम ऐसे लव और गुडविल सबको रेडिएट करते हैं तो उससे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। वो इंटरेस्ट फिर हमें कंपाउंड होकर के मिलता है इन ऑल दीज फील्ड्स ऑफ एक्सप्रेशन। मतलब अपनी लाइफ में वेल्थ, हैप्पीनेस, पीस, ट्रू एक्सप्रेशन, लव, ये सारी फील्ड्स में हमें वो सारा कंपाउंड। There is no virtue in poverty. It is a disease of the mind, and you should heal yourself of this mental conflict or malady at once. तो पावर्टी के लिए ऑथर कहता है कि ये माइंड की ही एक डिसीज है। अगर हमें अपनी लाइफ से पावर्टी खत्म करनी है तो उसके लिए हमें खुद को हील करना है। जो हमारे माइंड में मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उससे खुद को हील करना। एक तरह से देखा जाए तो लाइफ में अगर कोई भी एरिया में हमें वैसा कुछ लगता है ना कि कुछ सही नहीं चल रहा है तो हमें पहले ना अपने अंदर में ही झांकने की जरूरत है कि उस स्पेसिफिक एरिया में हमारे खुद के थॉट्स कैसे हैं। तो कई बार होता है कि थॉट्स की पूरी उधेड़ बुन रहती है, लेकिन जब हम उन थॉट्स को सुलझाते हैं, खुद को हील करते हैं, तो उस फील्ड में भी हमें वो चीज दिखाई देती है। जैसे अगर एग्जाम्पल दिया जाए, कोई क्लासमेट्स है हमारे, ये मेरा खुद का पर्सनल एग्जाम्पल है। तो उसमें ना कुछ लोगों से थोड़ा वैसे मतलब ना ऐसे दूरी दूरी जैसा लगने लगा था और उन लोगों से कोई झगड़ा नहीं था। तो उसके बाद में फिर हम सोच रहे थे कि ऐसा क्यों चल रहा है। फिर सोचते सोचते थोड़े टाइम के बाद में रियलाइज हुआ कि अपने थॉट्स को सॉर्ट आउट करना चाहिए। फिर ये भी अच्छी अच्छी बुक्स को पढ़ते पढ़ते तो वो जब थॉट्स ना क्लियर होने लगे, फॉरगिवनेस वाला सब आने लग गया, तो वो चीज ना रियल में भी दिखाई दे उन लोगों के साथ में। तो ये चीजें होती है, हमें अपने माइंड में जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे होते हैं उनको पहले सही करना होता है।
और इस वाले पर्टिकुलर चैप्टर में तो मनी के रिगार्डिंग था, तो अगर हमारी लाइफ में वेल्थ के रिगार्डिंग कुछ है तभी भी अपने मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को हमें सुलझाना होगा। अगर कोई लैक वाली फीलिंग है तो उसको एबंडेंस में कन्वर्ट करना, और इसके लिए एफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन बहुत हेल्पफुल है। और हमने ये भी सीखा है इस बुक में कि जब हम एफर्मेशंस लेते हैं तो उसका बेस्ट टाइम होता है सोने के जस्ट पहले और उठने के जस्ट बाद। ऐसा क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा कॉन्शियस माइंड थोड़ा साइलेंट रहता है। कॉन्शियस माइंड उतना एक्टिव नहीं रहता और सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। तो अगर उस वक्त उन एफर्मेशंस को प्रैक्टिस करते हैं तो डायरेक्टली हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में वो थॉट्स डाल सकते हैं। You are not here to live in a hovel, to dress in rags, or to go hungry. You are here to lead the life more abundant. तो ऑथर कह रहे हैं कि हम ऐसे लैक वाली लाइफ के लिए इस बर्थ में हम नहीं आए हैं। हमारी लाइफ को एबंडेंटली जीने के लिए हम यहाँ पे आए हैं। Neither use the terms filthy, lucre, or I despise none. You lose what you criticize. There is nothing good or bad, but thinking of it in either light makes it so. इस लाइन को अंडरलाइन कर सकते हैं, यू लूज व्हाट यू क्रिटिसाइज। जो हम क्रिटिसाइज करेंगे उसे हम खो देंगे। तो जैसे फिर से हम वो वाला एफर्मेशन, वो वाले थॉट्स याद कर सकते हैं जो स्टार्टिंग में हमने देखे कि किसी पर्सन को उसकी मनी के लिए, उसकी सक्सेस के लिए क्रिटिसाइज किया जा रहा है। तो अगर आप खुद भी चाहते हैं हमारी लाइफ में सक्सेस आए तो दूसरे को उसकी सक्सेस पे हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, क्योंकि यू लूज व्हाट यू क्रिटिसाइज। क्रिटिसाइज करने से वो चीज हम भी लूज कर देंगे, इसलिए हमें रिजॉइस करनी चाहिए दूसरों की खुशी में, उनकी सक्सेस में। कुछ भी गुड या बैड नहीं होता है, हमारी थिंकिंग के ऊपर ही ये सब डिपेंड करता है। रिपीट, फ्रीक्वेंट फ्रीक्वेंटली रिपीट करना है। आई लाइक मनी, आई यूज इट वाइजली, कंस्ट्रक्टिवली एंड जुडिशियसली। आई रिलीज इट विथ जॉय एंड इट रिटर्न्स अ थाउजेंड फोल्ड। जब हम कुछ पे करते हैं, पेमेंट कोई करते हैं, तो ऐसा हमारी लाइफ में कई बार होता होगा कि हम कुछ पेमेंट कर रहे हैं और वो थोड़ा ज्यादा महंगा पड़ गया हमारे बजट के हिसाब से, लेकिन फिर भी हमने पेमेंट करी क्योंकि वो जरूरी थी। तो यहाँ पे जो एफर्मेशन दिया गया है ना, उसको अगर हम ध्यान से समझे, आई रिलीज इट विथ जॉय एंड इट रिटर्न्स अ थाउजेंड फोल्ड। तो हम जब रिलीज कर रहे हैं तो हमें वो खुशी खुशी रिलीज करनी है, खुशी खुशी वो वाली पेमेंट करनी है, और विश्वास रखना है कि वो रिटर्न होकर आएगा थाउजेंड फोल्ड। जैसे टाइड वाले में भी जब लो टाइड है तभी भी विश्वास रखना हाई टाइड वापस आएगी, तो मनी वापस फ्लो होकर के आएगा। ये बिलीफ सिस्टम है। Money is not evil anymore, so that copper, lead, tin, or iron, which you may find in the ground. All evil is due to ignorance and misuse of the mind's powers. तो कह रहे हैं यहाँ पे कि मनी इविल नहीं है। जैसे कॉपर, लेड, टिन, आयरन जो मिनरल्स होते हैं, वो जो हमें ग्राउंड में मिलते हैं, वो भी कुछ इविल नहीं है, बस इग्नोरेंस और मिसयूज, माइंड के पावर के इग्नोरेंस और मिसयूज की वजह से वो इविल हो जाते हैं। अगर हम एग्जाम्पल देखें कि जो ग्लोबल वार्मिंग होती है, अर्थक्वेक्स आते हैं, तो कई बार माइनिंग की वजह से भी आते हैं। तो कई बार सेल्फिश डिजायर्स होती है लोगों की, उनके वजह से वो बहुत ज्यादा माइनिंग करते हैं, और जो माइनर्स होते हैं उनकी जान भी कई बार खतरे पे चली जाती है। और इन चीजों की वजह से जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको भी नुकसान पहुंचता है। फिर इन सब का कारण क्या है? इविल क्या ये मिनरल्स है? ये मिनरल्स इविल है, फिर उनका अगर मिसयूज किया जाए, यहाँ पे क्या लिखा है? मिसयूज, यूज नहीं। तो उनका यूज होना चाहिए। मिसयूज, इग्नोरेंस, ये सब की वजह से वो इविल बन रहे हैं। कुछ भी गुड या बैड नहीं होता है, उनको इविल बनाने वाले हम खुद होते हैं, जब हमारी माइंड के पावर्स इग्नोरेंस और मिसयूज की तरफ चली जाती है। To picture the end result in your mind causes your subconscious to respond and fulfill your mental image। जब हम अपनी माइंड में एंड रिजल्ट को पिक्चराइज करते हैं, एंड रिजल्ट कैसे?
जो हमारे डिजायर है, जिसके लिए हम अभी एफर्मेशंस प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसके लिए हम पॉजिटिवली सोच रहे हैं, जो हमारे मन में कुछ अगर डिजायर्स है तो उनका जो एंड रिजल्ट है, जब हमने उस चीज को अकॉम्प्लिश कर लिया, जब हम सक्सीड हो पाए, तो वो एंड रिजल्ट अगर हम अपने माइंड में पिक्चराइज करते हैं, विजुअलाइज करते हैं, तो फिर क्या होता है, जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है उस मेंटल इमेज को रिस्पॉन्ड करता है और हमारी मेंटल पिक्चर जो क्रिएट हुई, जो हमने विजुअलाइज किया, उसको भी फुलफिल करता है। Stop trying to get something for nothing. There is no such thing as a free lunch. You must give to receive. You must give mental attention to your goals, ideas, and enterprises, and your deeper mind will back you up. The key to wealth is application of the laws of the subconscious mind by impregnating it with the idea of wealth. तो जैसे आज वाले सेशन में हमने देखा कि फ्री में हमें कुछ नहीं मिलेगा, पहले हमें देना पड़ेगा। यू मस्ट गिव टू रिसीव। तो तो हमें देना पड़ेगा। इसमें एक और बात याद आई, जब हमने विकी शिवानी की बुक पढ़ी थी, बीइंग लव, तो उसमें भी उन्होंने बताया था ना कि जैसे आजकल की दुनिया में कहा जाता है कि जब हमें रेस्पेक्ट मिलता है तब हम रेस्पेक्ट देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो चीज हमारे पास होती है, जो हम देंगे, वही घूम कर हमारे पास आएगा। ये जो सेल्फ हेल्प वाली बुक्स होती है ना, इनमें जो आइडियाज होते हैं वो सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो हमें वो चीज देनी पड़ेगी रिसीव करने के लिए। यहाँ पे वेल्थ से रिगार्डिंग था। अब मेंटल अटेंशन कहाँ पे हमें देना है? अटेंशन देना है अपने गोल्स, अपने आइडियाज, एंटरप्राइजेस। और फिर क्या होगा, हमारा जो डीपर माइंड है वो वो हमें वो सब चीज प्रोवाइड करेगा। तो जो की टू वेल्थ क्या है यहाँ पे, हमें अगर वेल्थ चाहिए तो उसके लिए हमारी की है कि जो सबकॉन्शियस माइंड है उसके लॉज को, उसके लॉ के एप्लीकेशंस करने हैं, और अपने सबकॉन्शियस माइंड में हमें वो आइडियाज, वो थॉट्स डालने होंगे, सबसे हमको रिसीव करना है। सो tomorrow we will start from chapter 11. You can give your feedback now. Thank you so much for joining me. Thank you, sister, for this wonderful session. Thank you. It was very nice to learn that we lose what we criticize. This is one point which I have kept in my mind. आपकी आवाज कट रही है। राधा सिस्टर, आपकी आवाज क्रैक हो रही है। ये आवाज आ रही है? हाँ, हाँ, आ अभी आ रही रही है। है। हाँ, it's really after such a long time I joined this reading club. Meaning it was such a short notice actually, but anyway, I really missed because मुझे पता नहीं था, अगर पता होता तो मैं ज्वाइन कर पाती। लेकिन आपका ये रीडिंग क्लब, इसके लिए आई एम रियली एक्साइटेड। And today's takeaway, what I could see is like, how to put it, आपने जो explain किया था कि दूसरों की सफलता को देखकर खुद अम, उसे क्रिटिसाइज नहीं करना है। जैसे कि दूसरों के घर में दिवाली हो तो खुद के घर में आग नहीं लगानी है। तो तब आपके घर में अगर आपको दिवाली मनानी है तो दिया लगाओ, आग नहीं। लाइक दिस इज व्हाट आई थॉट। एंड वी शुडंट क्रिटिसाइज फॉर अदर्स सक्सेस, कि उन्होंने हर कोई कुछ भी फ्री में मिलता नहीं है। कि कुछ भी अगर किसी को मिल रहा है तो उसके पीछे उसकी तपस्या, उसका हार्ड वर्क और उसके जो एफर्ट्स है, उसके कर्म, वो सब मिल करके उसे वो मिल रहा है। तो हमें प्रेरणा लेनी चाहिए ऐसे किसी के पास मिल रहा है तो। लेकिन हम
उनको देख के आग नहीं लगानी है। जलन होना माना आग लगाना, और खुद के घर को आग लगाना मीन्स खुद के ये खुद की एनर्जी बर्न हो जाती है। तो आप खुद जब आप अपने आप को बर्न करते हैं तो आप उस सफलता से और ही दूर हो जाते हो। एंड देर इज नथिंग लाइक फ्री लंच। This one line was there, everything it requires input, only then you can get output. So yeah, that's it. Thank you so much, sister, for joining the group. And thank you for attending the Yeah, thank session too. Thank you for your feedback, Shruti you. sister and Radha sister. Yeah, like आप लाइक लास्ट ईयर से मैं देख रही थी कि आपका लाइक जो आप एक्सप्लेन कर रहे थे कि मन में थॉट्स आते हैं, और पहले वहां बाहर में लैक होता नहीं है, मन में अंदर लैक क्रिएट होता है कि मन में उलझन होती है। जब आप अपने मन को सुलझाते हैं, अपने थॉट्स को खोलते हैं, तो आपको वो फीलिंग लाइक लैक और अबंडेंस ऐसे कुछ लगता नहीं है। सब माइंड में होता है जो आपने बताया, चाहे कुछ भी हो, नॉट जस्ट मनी, एनीथिंग, एनी लैक। ये बात तो है। आपने ये आपने जित ट्राई किया है लाइक ऐसे, आपने ट्राई किया है जो आप बता रहे थे, ऐसे कोई अनुभव एग्जाम्पल जो कुछ है दिया था ऐसे? क्लासमेट्स वाला, नहीं नहीं, पर्सनल अनुभव लाइक। पर्सनल अनुभव ही था वो वाला मेरा। जो क्लासमेट्स वाला एग्जाम्पल दिया था, छोटा सा लेकिन पर्सनल अनुभव, और उस वक्त ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं थी इन सारी चीजों की। लेकिन उस वक्त मतलब पहले तो काफी सारे थॉट्स क्रिएट हो रहे थे। उसके बाद में बहुत ज्यादा ही वो भर जाने के बाद में सोचा कि उनको रिलीज किया जाए, अब सोचना ही नहीं इस बारे में। और फिर वो फॉरगिवनेस वाली, और जैसे ये काफी टाइम पहले की बात है ना, तब तो छोटे भी थे। तो उस वक्त जैसे नोट्स और होमवर्क में भी हेल्प कर देते थे, और फिर धीरे धीरे करते करते देखा जब वो थॉट्स, अपना माइंड जब साइलेंट हुआ ना, तो वो जो रिलेशंस है वो अच्छे होने लगे। तब ये, और इन बुक्स को पढ़ते पढ़ते तो और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो रही है कि जैसे पहले हमारा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट हमें सुलझाना होता है, तब फिर जाकर के जो रियल हमारी लाइफ में जो सिचुएशन होती है वो भी सही होने लगता है। कई बार लेकिन उसको सुलझाने में भी दिक्कत आ जाती है। मतलब माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं, पर उन्हें हमें पॉजिटिव करना ही पड़ता है, यही हमारा पुरुषार्थ है। जी, या जी, आप बहुत अच्छा लगा कि आप रीडिंग कर रहे हो।